you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. आइए ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. खुदावंद यीशु ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਏ खुदावंद यीशु ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। खुदावंद यीशु ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਉਤਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਪਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਭੁਤ ਮੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਰਕਤ देने प्रभु। आज की आराधना 100 गुना फल लेके प्रभु। आज जिन्ने दुखी बीमार हैं यीशु मसीह के नाम दे असीं प्रार्थना करते प्रभु तुसीं अपने लोगों को छू के चंगा करना प्रभु और तुहाडी महिमा एक एक दे जीवन तो होने पाए प्रभु। आइए और सानू अपने पाखरू ना भर दीजिए प्रभु। असीं आत्मा और सच्चाई दे विच हो के तुहाडी महिमा करिए खुदावंद यीशु। असीं सब कुछ ब्लैस करते हैं, तुहाडे लहू दे विच कवर करते हैं प्रभु जी। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਭਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਚੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣੇ ਪਾਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ओ खुदावंद यीशु ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਭਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਨਾ ਪਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਈਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੁਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आइए ਅਸੀਂ मिल के प्रभु की आराधना करांगे। दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया। कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयां करूं तेरे उपकार, कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयां करूं तेरे उपकार। बचा कर तूने, हाँ बचा कर तूने मुझे पापों से, बचा कर तूने मुझे पापों से, बचा कर तूने मुझे पापों से, बचा कर तूने मुझे पापों से। बना लिया है अपनी संतान, बना लिया है अपनी संतान। मिलकर सब मिलकर कहें कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयां करूं तेरे उपकार, कैसे धन्यवाद करूं ताली बजाते हुए प्रभु, कैसे बयां करूं तेरे उपकार। कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे
कैसे बयां करूं तेरे उपकार। कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयां करूं तेरे उपकार। कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयां करूं तेरे उपकार। कोई आशा नहीं थी मुझे, 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 कोई आशा नहीं थी मुझे। तूने दिया है जीवत आशा, कोई आशा नहीं थी मुझे, तूने दिया है जीवत आशा। बचा कर तूने मुझे पापों से, बचा कर तूने मुझे पापों से। हाँ बचा कर तूने मुझे पापों से, बचा कर तूने मुझे पापों से। बना लिया है अपनी संतान, कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयां करूं तेरे उपकार। कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयां करूं तेरे उपकार। कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयां करूं तेरे उपकार। कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयां करूं तेरे उपकार। कोई सहारा नहीं था मुझे, कोई सहारा नहीं था मुझे, कोई सहारा नहीं था मुझे, कोई सहारा नहीं था मुझे। बना है तू मेरा सहारा, कोई सहारा नहीं था मुझे, कोई सहारा नहीं था मुझे, कोई सहारा नहीं था मुझे। बना है तू मेरा सहारा, बचा कर तूने मुझे पापों से, बचा कर तूने मुझे पापों से। बना लिया है अपनी संतान, कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयां करूं तेरे तेरे उपकार। कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयां करूं तेरे उपकार। कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयां करूं तेरे उपकार। सहायता ऐसी तू कर दी मुझे, सहायता ऐसी तू कर दे मुझे, सहायता ऐसी तू कर दी मुझे, सहायता ऐसी तू कर दे मुझे, कि कभी ना मैं भूलूं तेरे उपकार। सहायता ऐसी तू कर दे मुझे, सहायता
ऐसी तू कर दी मुझे कि कभी ना मैं भूलूं तेरे उपकार। सहायता ऐसी तू कर दे मुझे कि कभी ना मैं भूलूं तेरे उपकार। बचा कर तूने मुझे पापों से, 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 बचा कर तूने मुझे पापों से। बना लिया है अपनी संतान। कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयां करूं तेरे उपकार। कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयां करूं तेरे उपकार। कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयां करूं तेरे उपकार। कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयां करूं तेरे उपकार। कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयां करूं तेरे उपकार। कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयां करूं तेरे उपकार। बचा कर तूने मुझे पापों से, बचा कर तूने मुझे पापों से, बचा कर तूने मुझे पापों से, बचा कर तूने मुझे पापों से। बना लिया है अपनी संतान। कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयां करूं तेरे तेरे कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयां करूं तेरे कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयां करूं तेरे उपकार। कैसे धन्यवाद करूं मेरे तेरे उपकार। कोई आशा नहीं थी मुझे, कोई आशा नहीं थी मुझे, तूने दिया है जीवत आशा। कोई आशा नहीं थी मुझे, तूने दिया है जीवत आशा। बचा कर तूने मुझे पापों से, बचा कर तूने मुझे पापों से। बना लिया है अपनी संतान। सभी के कहें। कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयां करूं तेरे उपकार। कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयां करूं तेरे उपकार। कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयां करूं तेरे उपकार। कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयां करूं तेरे उपकार। 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 बचा कर तूने मुझे पापों से, बना लिया है अपनी संतान। कैसे धन्यवाद करूं मेरे प्रभु, कैसे बयां करूं तेरे उपकार। मैं कैसे बयां करूं
तेरे उपकार मैं कैसे बयां करूं तेरे उपकार। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। तारीफ तेरी हम गाएं, यहोवा मेरे बादशाह। तारीफ तेरी हम गाएं, यहोवा मेरे बादशाह। तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें। देते हैं तुझको जला, तारीफ तेरी हम गाएं, यहोवा मेरे बादशाह। तारीफ तेरी हम गाएं, यहोवा मेरे बादशाह। तारीफ तेरी हम गाएं, यहोवा मेरे बादशाह। मिलके गाइए। तारीफ तेरी हम गाएं, यहोवा मेरे बादशाह। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, सब तारीफ करते हुए कलीसिया। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तू बादशाहों का बादशाह है, तुझ सा ना कोई दूजा खुदा। तू बादशाहों का बादशाह है, एक मन हो जाए सब जन खुदावंद की तारीफ करें रूह से। तू बादशाहों का बादशाह है, तुझ सा ना कोई दूजा खुदा। तू बादशाहों का बादशाह उसके है, जैसा कोई नहीं है। सब कहे दूजा खुदा। हर जंग मेरी लड़ता खुदावंद, मुझको दिलाता है तू ही फतह। हर जंग मेरी तू लड़ता खुदावंद, मुझको दिलाता तू ही फतह। तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, तेरी रूह से भरे हो सिताइश करें। तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, तेरी रूह से भरे हो सिताइश करें। देते हैं तुझको जला, तारीफ तेरी हम गाएं, यहोवा मेरे
बादशाह। मिलके गाइए। तारीफ तेरी हम गाए, यहोवा मेरे बादशाह। हालेलुया 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 आनंद से मिलके हालेलुया 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 तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, तेरी रूह से भरे और सिताइश करे, तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, तेरी रूह से भरे और सिताइश करे। देते हैं तुझको जलाल, तारीफ तेरी हम गाएं, यहोवा मेरे बादशाह। तालियों के साथ तारीफ तेरी हम गाए, यहोवा मेरे बादशाह। तेरी परस्तिश का गहरा मसा अब हर रूपे छाए मेरे खुदा, तेरी परस्तिश का गहरा मसा अब हर रूपे छाए मेरे खुदा। मिलके कहे तेरी परस्तिश का गहरा मसाब हर रूपे छाए मेरे खुदा, तेरी परस्तिश का गहरा बसात हर रूपे छाए मेरे खुदा। हम पे बहा दे तू अपने मसा को, पा जाए सारे रोगी शिफा। हम पे बहा दे तू अपने मसा को, पा जाए सारे रोगी शिफा। हम पे बहा दे तू अपने मसा को, पा जाए सारे रोगी शिफा। हम पे बहा दे तू अपने, उसके मस्से को मांगे सब कलीसिया। जाए सारे मेरे खुदा तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, और तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, और तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, और तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें। देते हैं तुझको जलाल, तारीफ तेरी हम गाएं, यहोवा मेरे बादशाह। तारीफ तेरी हम गाएं, यहोवा मेरे बादशाह। सब मिलके गाइए। तारीफ तेरी हम गाएं, यहोवा मेरे बादशाह। तारीफ तेरी हम गाए, यहोवा यहोवा मेरे बादशाह। तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, तेरी रूह से भरे और सिताइश करें, तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, तेरी रूह से भरे और सिताइश करें, और तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें,
तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, ओ तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, हाँ तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, देते हैं तुझको जला तारीफ तेरी हम गाएं, यहोवा मेरे बादशाह तारीफ तेरी हम गाएं मिलके यहोवा मेरे बादशाह। हालेलुया 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 तारीफ करते हुए हालेलुया 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 उसकी आत्मा से सच्चाई से तारीफ करें सब जन। हालेलुया तारीफ तेरी हम गाएं यहोवा मेरे बादशाह, तारीफ तेरी हम गाएं यहोवा मेरे बादशाह। यहोवा मेरे बादशाह, यहोवा मेरे बादशाह, यहोवा मेरे बादशाह, यहोवा मेरे बादशाह। तारीफ तेरी हम गाएं यहोवा मेरे बादशाह। आए मिलके कहें तारीफ तेरी हम गाएं यहोवा मेरे बादशाह, तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, तेरी रूह से भरे हम सिताइश करें, देते हैं तुझको जला तारीफ तेरी। सब मिलके कहें हम गाएं यहोवा यहोवा मेरे बादशाह। यहोवा मेरे बादशाह। हालेलुया थैंक यू जीसस। हालेलुया आइए खुदावंत के लिए जोर से ताली लगाएं। हालेलुया धन्यवाद यीशु। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। हालेलुया आइए और खुदावंदी तारीफ करांगे, सब प्रभु दी आराधना करांगे। अपनी अखां नूं सब प्रभु दी हजूरी दे विच बंद कीजिए। हालेलुया अपना ध्यान जिउंदे परमेश्वर दे वल लगाइए। कोई भी जन अपनी अखां नूं ना खोले प्रभु दी हजूरी दे विच। हालेलुया प्रभु दा वचन कहंदा आ परमेश्वर आत्मा है और जरूरी है उसकी आराधना करने वाले आत्मा ते सच्चाई दे नाल उसकी आराधना करन। हालेलुया थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया जेड़े हो जांदे ने पाक खुदा दे होना दे बोझ यसू ने चुक लए। जेड़े हो जांदे ने पाक खुदा दे होना दे बोझ यसू ने चुक लए। ओ सब आजाद ने ओ हुणी आजाद ने ओ सब आजाद ने ओ हुणे आजाद ने होना दे बोझ
यसू ने चुक लए गए सब जन होना दे बोझ यसू ने चुक लए जेड़े हो जांदे ने पाक खुदा दे होना दे बोझ यसू ने चुक लए जेड़े हो जाते ने पाक खुदा दे होना दे बोझ यसू ने चुक लए जेड़े हो जांदे ने पाक खुदा दे होना दे बोझ यसू ने चुक लए आइए मिलके कहिए जेड़े हो जाते पाक खुदा दे ने पाक खुदा दे होना दे बोझ होना दे बोझ यसू ने चुक लए ओ सब आजाद ने ओ हम आजाद ने वो सब आजाद ने ओ हुण आजाद ने ओ ना दे बोझ यसू ने चुक लए ओ ना दे यसू ने चुक लए ये मिलके कवांगे जेड़े हो जांदे ने पाक खुदा दे ओ ना दे बोझ यसू ने चुक लए मिलके जेड़े हो जाते हालेलुया ने पाक खुदा दे होना दे बोझ यसू ने चुक लए ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਯੇਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਯੇਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਮਖਾਰ ਹੈ ਯੇਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਯੇਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਯੇਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਯੇਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਮਖਾਰ ਹੈ ਯੇਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਯੇਸੂ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲੈ ਉਹ ਸਭ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਆइए मिल के कवांगे ਹੋ ਜਾਂਦੇ पाक खुदा दे पाक खुदा दे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ चुक ले ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਸੇ ਹੈ ਯੇਸੂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਦਿਲਾਸੇ ਹੈ ਯੇਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਯੇਸੂ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਕਾਟੇ ਹੈ ਯੇਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਸੇ ਹੈ ਯੇਸੂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਦਿਲਾਸੇ ਹੈ ਯੇਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਯੇਸੂ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਕਾਟੇ ਹੈ ਯੇਸੂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਉਹ ਸਭ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ
ਉਹ ਸਭ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਈਏ ਸੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨ ਆਰਾਮ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਅਤੇ ਜਾਨ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨ ਆਰਾਮ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਅਤੇ ਜਾਨ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਯਿਸੂ ਜੋ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਜੋ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਈਏ ਜੋ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜੋ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਈਏ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਭ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜੋ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜੋ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ 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 ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ 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 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ
चुक ले। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज हालेलुया। आइए ਅਸੀਂ सब अपने स्थानां ਤੇ खड़े हो जावांगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम सभी अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हाथों उठा के बोले हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। खुदावन यीशु आप सारे ने बहुत सारी बरकतें। मैं तेरे को आखना चाहना, इस नूं थोड़ा घटाओ, बाकी साउंड थोड़ा घट कर, इसनूं थोड़ा घटाओ। प्रेज, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोले हालेलुया। मैं कुछ तुहानूं दसना चाहना। आज सब जानते हैं कि कल गुड फ्राइडे है ना? सबनों पता है कल की है गुड फ्राइडे। जिस तरह की लास्ट संडे में थानू दसिया सी कि असी वन बाय वन समय के अनुसार तुहानू असी सब कुछ तुहाडे नाल साझा करांगे, सब गल्लां करांगे। गुड फ्राइडे, ईस्टर, जीवटना, क्रूज, पाम संडे दे लिए भी दसिया सी। हालेलुया। जिस तरह की कल गुड फ्राइडे है, मैं हले आया ही तो मेरे मन में एक गल परमेश्वर दे वल्लों पई है। असीं सब ने बड़े ध्यान दे नाल सुनना इस गल, है ना? जिस तरह की कल गुड फ्राइडे है, कल जो कल दा दिन है, प्रभु यीशु मसीह नूं क्रूस दे उत्ते चढ़ाया जाना है ना? तुहानूं पता है कल जो क्रूस दे उत्ते चढ़ाया जाना है, आज उस तो पहले तैयारी हो रही सी। आज तैयारी हो रही सी कादी? क्रूस दे उत्ते चढ़ाने दी। आज प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते, आज प्रभु यीशु मसीह दे लई योजनावां तैयार कीतियां जा रही सी। उसनूं किस तरह फड़िया जाएगा, कौन उसनूं फड़वाएगा? आप सबनूं पता है किसने फड़वाया सी यीशु मसीह नूं? यहूदा इस्करियोती ने। किन्ने दे विच? हाँ, 30 चांदी दे सिक्कियां दे बदले वो विक गया और उसने अपने अपने परमेश्वर दा सौदा दूसरे लोकां दे नाल कर दिता। वचन विच असीं बहुत कुछ सीखांगे, वचन विच दसिया जाएगा अज दे दिन दे बारे भी। एक जस्ट मैं तुहानूं दसदा पिया आ कि जिस तरह कल क्रूज दे उत्ते चढ़ाया जाना सी, कल और उस तो पहलों अज उन्हां सब गल्लां दी तैयारी, प्लैनिंग, योजनावां रचियां जा रही सी कि यीशु मसीह दे नाल असीं की करना है, किस तरह उसनूं फड़ना है, किस तरह उस दे नाल होना चाहिदा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये दसना चाहुंदा आ कि उन्हां लोकां ने भी यीशु मसीह दे लई योजनावां रचदे पए सी। वो लोग जिन्हां ने यीशु मसीह नूं क्रूस दे उत्ते चढ़ा दिता और अज दे दिन विच कई समय तो यीशु मसीह नूं फड़न दी योजना सी, चलदी पई सी कि किस तरह असीं इस दे नाल करांगे। मेरा तुहाडे नाल एक सवाल है, अज तुहाडी प्लैनिंग की है अपने जीवन दे प्रति? विरोधियों ने भी यीशु मसीह नूं फड़न दी योजना तैयार की। एक बंदे नूं तैयार किया, उसनूं लालच दिता, वो लालच दे विच आ गया और उसने यीशु मसीह दा सौदा कर दिता 30 चांदी दे सिक्कियां दे बदले। हालेलुया। पर मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा, विरोधी दुश्मन लोग भी
ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਾਕਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਵੈਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਜਵਾਬ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਜਵਾਬ? ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਵਾਈਟ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਵਾਈਟ ਦੁਪੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਜਨੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਜਨੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਲਕਾ ਪ੍ਰੇਜ਼, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਯਾਜਕ ਲੋਕ, हन्ना, कैफा, पिलातुस, हेरोदेस, सब यीशु मसीह दे प्रति सी, यीशु मसीह दे खिलाफ सी, यीशु मसीह दे कम्मां दे खिलाफ सी, बल्कि मैं आखदा कि परमेश्वर दे खिलाफ सी। और ये यीशु मसीह नूं किस तरह बार-बार परमेश्वर दे वचन नूं अगर तुसीं ध्यान दे नाल पढ़ो तां बार-बार ये दस्सिया गया है कि ये लोग ये तैयारी करदे पए सी कि असीं किस तरह यीशु मसीह नूं फड़वाईए, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਰੂਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਆइए अपने आप ਨੂੰ परमेश्वर के हाथों में दईए। असि जस प्रार्थना करांगे, आइए सभी अपनी अखां बंद करें, अपने हाथों में उठाएं परमेश्वर दे वाल। मेरे प्रिय जनो, मैं तुहानू एक गल, मैं तुहानू थोड़ी तैयारी दे वाल लीड करना चाहना हाँ। मैं तुहानू तैयारी दे वाल लीड करना चाहना हाँ। अपनी अखां बंद करो, अपने हाथों में उठाओ और परमेश्वर को, प्रभु मैनू तैयार कर अपने राज्य के लिए। अपनी अखां बंद करो, अपने हाथों में उठाओ, उच्ची आवाज के नाल कहो कि परमेश्वर मैनू तैयार करो। परमेश्वर मेरे जीवन नू मैनू तैयार करो। परमेश्वर अपनी कमियों नू परमेश्वर दे अगे रखो। परमेश्वर नू आखो कि खुदा मेरे जीवन च मेरी कमियों नू दूर करो ताकि मैं तुहाडे लिए तैयार हो सका। आइए असीं सब स्टेज उत्ते भी प्रार्थना करांगे। इस समय गान दा नहीं है, पर इस समय प्रार्थना करन दा है, अपनी तैयारी दा समय है। प्रभु दे अगे प्रार्थना करो, परमेश्वर मैं अपने जीवन नू तुहाडे हत्थां विच दिना है, मैं अपने जीवन नू तुहाडे हत्थ अगे समर्पित करदा है। प्रभु ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਲੋਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਰੱਖਦਾ ਆ।
और मैं आखदा है कि परमेश्वर जो थानू मेरे अंदर पसंद नहीं आ उस उन्हां गल्लां नू मेरे अंदरों बाहर कढ दो प्रभु। चाहे परमेश्वर मैनू उसके प्रति दुख उठाना पवे, परमेश्वर उन्हां गल्लां नू मेरे अंदरों बाहर दूर कर दो मेरे प्रभु। परमेश्वर उन बातों को मेरे जीवन से दूर करे जो मुझे आपसे दूर करना चाहती है, ताकि परमेश्वर मेरे जीवन की तैयारी हो सके मेरे प्रभु। आइए खुदा से बोले, खुदा को बोले। अगर आप गाली गलौज करते हो, खुदा को बोलो, परमेश्वर मैं नहीं बोलना चाहता, मेरी मदद करे परमेश्वर कि मैं गाली बोलना बंद कर दूं। चाहे परमेश्वर इसके प्रति आपको मेरे प्रति आपको सोटी उठानी पड़े, खुदा परमेश्वर मैं चाहता हूं कि मेरी मदद करे, मैं गाली गलौज ना करूं। परमेश्वर मेरी मदद करे प्रभु, मेरे अंदर से खुदावन मेरी कमियों को दूर करे, मेरे अंदर से मेरी बुराई को दूर करे मेरे प्रभु। मेरे अंदर से प्रभु मेरे अंदर से बुराई को दूर करे मेरे परमेश्वर। मेरे जीवन को बदले मेरे प्रभु, मेरे जीवन को बदले मेरे प्रभु, मेरे जीवन में कार्य करे मेरे प्रभु। मेरे मन में मेरे ख्यालों को पवित्र करे मेरे प्रभु, मेरे विचारों को शुद्ध करिए मेरे प्रभु। मेरे होठों को, मेरी जुबान को पवित्र करे मेरे परमेश्वर। मैं अपनी मर्जी से नहीं जीना चाहता, मैं आपकी मर्जी के अनुसार जीना चाहता हूं मेरे प्रभु। परमेश्वर आइए सभी प्रार्थना करें। आप में से कुछ ऐसे जो प्रार्थना नहीं कर रहे, आइए प्रार्थना करें सभी परमेश्वर से। प्रभु मुझे अपनी इच्छा के अनुसार जीना सिखा मेरे प्रभु। मेरे अंदर से उन बातों को मार बाहर निकाल मेरे प्रभु जो आपको पसंद नहीं है मेरे पिता। जो बातें मुझे अच्छी लगती है पर वो आपको पसंद नहीं, खुदा उनको भी बाहर निकाल। वो बातें मुझे छोड़ के जाएं खुदावन। जो मेरी आंखों को पसंद है पर वो आपको अच्छा नहीं लगता, मैं चाहता हूं वो भी मेरे अंदर से बाहर निकले। प्रभु मेरे जीवन में कार्य करें। आइए प्रभु से प्रार्थना करें, चाहे आप रो के प्रार्थना करें, चाहे कैसे भी प्रार्थना करें, पर आप प्रार्थना करें प्रभु मेरे जीवन को बदले और मुझे पवित्र आत्मा से भरे, मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे, मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक से बने, मुझे पवित्र आत्मा से भरे, मुझे पवित्र आत्मा से भरे मेरे परमेश्वर। खुदावन मेरे अंदर मेरे काम करे मेरे प्रभु। स्टेज के ऊपर भी सभी प्रार्थना करें, सभी प्रार्थना करें स्टेज के ऊपर। अगर आप बुरा देखते हो, आप कुछ भी गलत देखते हो, प्रभु के आगे आपकी आंखों को गंदा देखने की आदत है, परमेश्वर के आगे ईमानदार बने और परमेश्वर से कहें कि खुदा मेरे जीवन में ये कार्य करें, मुझे बचाएं, मेरी आंखों को निर्मल करे, शुद्ध करे, पवित्र करे मेरे प्रभु, ताकि मेरा सारा शरीर नाश ना हो मेरे प्रभु। प्रभु मेरे जीवन में कार्य करे मेरे प्रभु। आइए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दें और प्रार्थना करें सभी भाई, प्रार्थना करें। भरावां दे विच चुप करके खड़े ने, पता नहीं सो रहे या जां की करदे पे ने, मैनूं समझ नहीं आ रहा। अपनी जुबानां नूं खोलो और प्रार्थना करो। प्रभु मुझे तैयार कर अपने राज के लिए, मुझे तैयार कर प्रभु अपने लिए, तेरे कामों के लिए प्रभु मुझे तैयार कर, तेरी महिमा के लिए मुझे तैयार कर, मुझे तेरे राज्य के लिए तैयार कर प्रभु, मुझे तैयार कर मेरे प्रभु, मुझे तैयार कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तेरा आना बड़ा निकट है मेरे प्रभु। मुझे तैयार कर खुदा, मुझे तैयार कर मेरे प्रभु, मुझे तैयार कर मेरे परमेश्वर। मेरे अंदर से बुराई को प्रभु बाहर निकाल खुदा। जो वो बातें मुझे अच्छी लगती है पर वो आपको अच्छी नहीं लगती, वो बातें मेरे जीवन से दूर हो जाए मेरे
दूर हो जाए मेरे प्रभु। मुझे अपनी आत्मा से भर खुदावन, मुझे अपने अभिषेक से भर मेरे पिता, मुझे अपनी बुद्धि से भर मेरे प्रभु, मुझे अपनी समझ से भर मेरे पिता, मुझे अपने वचन से भर मेरे परमेश्वर, और मुझे अपने ज्ञान से भर मेरे परमेश्वर। मेरे जीवन में एक महान काम कर खुदावन, एक नया काम कर मेरे प्रभु, एक नया और अद्भुत काम कर मेरे प्रभु। मुझे प्रार्थना में बढ़ने के लिए मदद कर, मुझे वचन में बढ़ने के लिए मदद कर। मेरे जीवन में परमेश्वर आग को लगा खुदावन, मेरे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा की आग को भर दे मेरे प्रभु। मुझे भर और मुझे चला और मेरी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर। मेरी मदद कर खुदावन हर दिन प्रभु, हर समय मेरे परमेश्वर मेरी मदद करे। हालेलुया। सारी कलीसिया ध्यान से प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रे करें, प्रार्थना करें सभी। जीसस हालेलुया। प्रभु मुझे ऐसा बना कि मैं तेरे लिए तैयार हो सकूं मेरे प्रभु। मुझे ऐसा बना कि प्रभु मैं तेरे लिए जी सकूं खुदावन। प्रभु तो आप मेरे लिए मरे हो। प्रभु मुझे ऐसा तैयार कर, ऐसा बना कि मैं आपके लिए जी सकूं मेरे प्रभु। आइए ऊंची आवाज के साथ बोले, प्रभु प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहता हूं मेरे प्रभु। मैं अपने लिए नहीं, पर मैं प्रभु आपके लिए जीना चाहता हूं मेरे प्रभु। मैं अपनी ख्वाहिशों में मर जाऊं, मेरी ख्वाहिशें मेरे अंदर की ख्वाहिशें मर जाएं, मेरे अंदर की बुराई मर जाए, मेरी आंखों की अभिलाषा मर जाए, मेरे शरीर की अभिलाषा मर जाए। वो सब बातें खुदा जो आपको पसंद नहीं, वो मेरे अंदर से मर जाए, खत्म हो जाए, और मैं आपके लिए जी सकूं। मुझे ऐसा बनाए मेरे प्रभु, मैं आपके लिए जी सकूं खुदावन, मैं आपके लिए जी सकूं खुदावन। प्रभु आप मुझे ऐसा करें, ऐसा बनाए मेरे जीवन को। प्रभु आप मेरे जीवन में कार्य करें मेरे प्रभु। जीसस जीसस होली स्पिरिट थैंक यू। पवित्र आत्मा जी अपने लोगों में कार्य करें, पवित्र आत्मा अपने लोगों को छुए, हमें तैयार करें मेरे प्रभु, हमें तैयार करें मेरे प्रभु, हमें तैयार कीजिए मेरे परमेश्वर, हमें तैयार कीजिए खुदा। मैं अपने जीवन को आपके आगे समर्पित करता हूं, समर्पित करती हूं, अपने आप को आपके आगे रखता हूं मेरे प्रभु। आप मुझे तैयार करें, आप मुझे तैयार करें, आप मुझे तैयार करें मेरे प्रभु, आप मुझे तैयार करें मेरे प्रभु, आप मुझे तैयार करें मेरे प्रभु। मैं आपको अधिकार देता हूं अपने जीवन के ऊपर प्रभु। मैं पवित्र आत्मा को अधिकार देता हूं अपने जीवन के ऊपर। मेरे जीवन बदले मेरे प्रभु। वो बातें, वो काम जो प्रभु आपको अच्छा नहीं लगता, जो आपको पसंद नहीं है, वो मेरे जीवन से खत्म हो जाए, वो मेरे जीवन से प्रभु दूर हो जाए। बुराई मुझसे दूर हो जाए प्रभु, बुरा बोलना मुझसे दूर हो जाए, बुरा देखना मुझसे दूर हो जाए, वो बुरा सुनना मुझसे दूर हो जाए, बुरा चाल चलन मुझसे दूर हो जाए प्रभु, बुराई मुझसे दूर हो जाए। परमेश्वर आप ऐसा काम करें, ऐसा कार्य करें मेरे प्रभु। जीसस 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 लॉर्ड हालेलुया। थैंक यू। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें, अपनी तैयारी के लिए प्रार्थना करें। यीशु को पकड़ने के लिए लोगों ने आज तैयारी की थी। क्या करना है, कैसे पकड़ना है, किसको पैसे देने हैं।
प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन में काम करें। मुझे बचाएं मेरे प्रभु, मुझे तैयार करें अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के लिए तैयार करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, अपनी महिमा के लिए, अपनी गवाही के लिए प्रभु, अपनी महिमा के लिए मुझे तैयार करें मेरे प्रभु। आप मेरे जीवन को कबूल करें मेरे प्रभु। मेरे सारे भाई अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें, मेरी सारी बहनें अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। प्रे, प्रार्थना करें खुदा से, प्रभु यीशु मसीह। इवन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपसे बुराई हो जाती है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ईमानदारी के साथ अपने इस बात को प्रभु को बताएं। प्रभु को बोले, प्रभु मुझसे बुराई हो जाती है, मैं करना नहीं चाहता, आप मेरी मदद करें कि इस बुराई से मैं बाहर आ सकूं। आपको मालूम परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप उत्पत्ति में पढ़े याकूब के लिए, जब आप याकूब को पढ़ेंगे, याकूब के लिए पढ़ेंगे, उसके जीवन के लिए पढ़ेंगे, तो वचन कहता है वो एक धोखा देने वाला व्यक्ति था। धोखा देने वाला, उसने अपने भाई को, अपने पिता को धोखा दिया था। जब वो परमेश्वर से मिला और उसने कहा कि मैं याकूब हूं, परमेश्वर ने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मैं याकूब हूं। याकूब का अर्थ है धोखा देने वाला, बेईमान व्यक्ति। जब परमेश्वर ने कहा तेरा नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम याकूब है। परमेश्वर ने कहा तूने सच कहा है। इसी तरह से आज अपनी सारी कमियों को खुदा के आगे रख दे और खुदा से बोले, परमेश्वर मैंने ये बुराई की है, अब मुझे इससे बाहर निकलने के लिए मदद करें। मेरी आंखों ने बुरा देखा है, मेरी आंखों ने बुराई की है, मुझे इससे बाहर निकलने के लिए मदद करें। मेरे होठों ने, मेरी जुबान ने बुराई की है, मेरे होठों, मेरी जुबान ने मेरे दिल दुखाया है, मैं किसी की विरोधता में बोला हूं। प्रभु से बोले कि परमेश्वर मेरी मदद करें ताकि मैं इन चीजों से बाहर आ सकूं। मैंने चुगलियां की है, प्रभु को बोले अपनी सच्चाई परमेश्वर के आगे रखें, प्रभु आपको आजाद करेगा। परमेश्वर दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। यदि आप अपनी बुराई को मान लोगे, परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करेगा। यदि आप अपने जीवन में मान ले कि मैंने ये गलत किया है, मैंने पाप किया है, मैं परमेश्वर की विरोधता में बोला हूं, मैंने ये गलत किया है। जब आप बुराई करते हो, आप परमेश्वर की विरोधता में करते हो और खुदा को बोले, परमेश्वर मैंने ये गलत किया है, मैंने पाप किया है, मैं अंगीकार करता हूं, मैं मानता हूं कि मैं यहां पर दोषी हूं, मैं गुनहगार हूं और मैंने ये गलती की है। प्रभु मुझे माफ कर, मेरे ऊपर अनुग्रह कर मेरे प्रभु, मेरे ऊपर अनुग्रह कर मेरे प्रभु, मुझे तैयार कर अपनी महिमा के लिए, मुझे तैयार कर अपने राज्य के लिए। जीसस थैंक यू, हालेलुया। सभी प्रार्थना करें, सभी प्रे करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रार्थना करें प्रभु से, प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन को बदले, मेरे जीवन को बदले मेरे प्रभु, आप मेरे जीवन में काम करें, आप मेरे जीवन में काम करें मेरे प्रभु, आप मेरे जीवन में काम करें मेरे प्रभु, आप मेरे जीवन में काम करें मेरे प्रभु,
मैं अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूं। मैं अपने आप को आपके आगे समर्पित करता हूं। मेरे जीवन में काम करे मेरे प्रभु, मेरे जीवन में काम करे मेरे प्रभु। मेरे अंदर से बुराई को खत्म करे, वो बातें जो आपको अच्छी नहीं लगती उसको खत्म कर दे मेरे प्रभु। आप मुझे तैयार करें। मेरे सारे भाई मेरी बहनें बोले प्रभु मुझे तैयार कर, मुझे तैयार करे प्रभु, अपने आगमन के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए तैयार कर मेरे प्रभु। मुझे तैयार कर मेरे प्रभु, मुझे तैयार कर मेरे प्रभु, मुझे तैयार कर मेरे परमेश्वर, मुझे तैयार कर मेरे प्रभु। खुदा मुझे तैयार कर, हालेलुया। प्रभु मुझे तैयार कर, हालेलुया। प्रभु आप मेरे लिए इसलिए मरे ताकि मैं जी सकूं। प्रभु मुझे अपने आप के लिए जीने के लिए तैयार करे खुदा। बोले परमेश्वर से प्रभु आप मेरे लिए मर गए ताकि मैं जी सकूं खुदा। मेरी मदद करे मेरे प्रभु, मैं आपके लिए जी सकूं। ओ मैं आपके लिए जी सकूं, ओ मैं आपके लिए जी सकूं मेरे प्रभु। मैं अपने आप के लिए मर जाऊं पर मैं आपके लिए जीऊं खुदा। मैं अपने आप के लिए मर जाऊं पर मैं आपके लिए जीऊं मेरे परमेश्वर। मेरे अंदर से स्वयं खत्म हो जाए पर प्रभु मेरे जीवन से आपको महिमा मिले। मैं आपके लिए जीऊं खुदा, आपके लिए जीऊं खुदा। मुझे अपने आप के लिए जीने के लिए मदद करे खुदा। आप मुझे तैयार करे प्रभु, आप मुझे तैयार करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। होली स्पिरिट थैंक यू, प्रेज, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू प्रभु। मैं आपके लोगों को आपके हाथों में देता हूं परमेश्वर। आपकी दया और आपकी आशीष इनके ऊपर चाहता हूं मेरे परमेश्वर। यूहन्ना कहता है मैं घटूं वो बढ़े। आज खुदा को कहे प्रभु मैं घट जाऊं, आप बड़े मुझ में, आप बड़े। बोले प्रभु आप बड़े मुझ में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु मैं कम होता जाऊं और आप बढ़ते जाए मुझ में। आप बढ़ते जाए मेरे प्रभु, मैं आप बढ़ते जाए प्रभु, आप बढ़ते जाए मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावंद यीशु आपकी तारीफ हो, हालेलुया। आइए आप चुप ना रहे, कोई भी चुप ना रहे। हमारे पास समय है परमेश्वर से बात करने के लिए। हमारे पास समय है कि हम अपने जीवन को खुदा को दे सकें। आप अपने अंदर देखें कि आपके अंदर कौन सी कमी है। हो सकता है शायद आपसे ज्यादा बोला जाए, हो सकता है शायद आप गाली देने वाले हो सकता है शायद आप चुगलियां करने वाले हो सकता है शायद आपके मुंह से झूठ निकलता हो। ये कमियां हैं हमारे जीवन में। आप खुदा को बताएं, आप बोले परमेश्वर से, आप खुदा को बोले। थैंक यू जीसस। आप खुदा से बोले प्रभु मुझसे झूठ बोला जाता है प्रभु, आप मेरी मदद करें, आप मेरी सहायता करें मेरे परमेश्वर कि मैं झूठ ना बोलूं। प्रे। मैं भाइयों में से कहना चाहता हूं, हो सकता है आपके मुंह से गाली निकलती है। यहां पर हैं कुछ जिनके मुंह से गाली निकलती है। आप बात बात के ऊपर गाली निकालते हैं।
आप खुदा से कहें, प्रभु मेरी मदद करें ताकि मैं गाली ना निकालूं। मेरी जुबान के ऊपर प्रभु आपका कंट्रोल हो खुदा। बोले परमेश्वर से, खुदा बोले खुदा को कि प्रभु मेरे मुंह से गाली ना निकले। मेरे मुंह से कोई गाली ना निकले खुदा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे कुम्हार के हाथों में मिट्टी रहती है, वचन कहता है उसी प्रकार से हम परमेश्वर के हाथों में रहते हैं। आइए खुदा से कहे, खुदा मैं अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूं। जैसे कुम्हार के हाथों में मिट्टी रहती है, उसी प्रकार से मैं आपके हाथों में रहता हूं। प्रभु प्रभु मुझे तोड़ो और बनाओ। अब मुझे तोड़े खुदा। आपको मालूम, जब कुम्हार बर्तन को तैयार करता है, अगर कहीं से भी उसको लगता है कि बर्तन अभी अच्छे से तैयार नहीं है, वो फिर से उसको तोड़ता है। अगर बर्तन की शेप जब खराब हो जाती है, तो कुम्हार उस मिट्टी को दोबारा से उस मिट्टी को तोड़ता है और फिर से उससे एक अच्छी और नई शेप देता है। मेरे प्रियजनों, आइए हम प्रभु से कहें, खुदावन मुझे तोड़े और मुझे एक अच्छी शेप दीजिए खुदा। आइए परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे तोड़ो, मुझे तोड़े और मुझे एक अच्छी शेप दीजिए। मुझे एक अच्छा बर्तन बनाए खुदावन, मैं आपके इस्तेमाल में आ सकूं। मेरे प्रभु, मैं आपके हाथों में अपने आप को देता हूं खुदावन। आप मुझे अपने हाथों में ले मेरे प्रभु। ओ आइए बोले परमेश्वर से, प्रभु मुझे अपने हाथों में ले और मुझे तोड़ और मुझे फिर से बनाना शुरू कर खुदा। मुझे फिर से तैयार करना शुरू कर खुदावन। मुझे तैयार कर खुदा। उस कुम्हार के नाई मुझे बना और तैयार कर। उस कुम्हार के नाई मुझे ले और तोड़ और फिर से बना मेरे प्रभु। परमेश्वर आज मेरे जीवन में ऐसा काम कर खुदा। आज मेरे जीवन में ऐसा काम कर मेरे प्रभु। मुझे बना मेरे प्रभु, मुझे तैयार कर परमेश्वर, मुझे तैयार कर खुदावन। ओ जो मिट्टी सही नहीं है मेरे जीवन में मेरे पिता, उसको दूर कर खुदावन। जो बातें मेरे अंदर सही नहीं है उसको दूर कर खुदावन। मुझे तोड़ मेरे प्रभु, मुझे तोड़ मेरे परमेश्वर, मुझे तोड़ खुदा, मुझे तोड़ मेरे प्रभु। मुझे एक अच्छा बर्तन बना मेरे प्रभु। मुझे अपने इस्तेमाल में आने वाला बर्तन बना मेरे प्रभु। ओ मुझे अपनी योजना के अनुसार कर मेरे प्रभु। ओ मेरे भाई पीछे प्रार्थना कर, चुप रहने का समय नहीं है। ओ प्रभु ये चुप रहने का समय नहीं है। प्रभु से बोले कि खुदा मुझे तोड़े और मुझे फिर से तैयार करे। मुझे तोड़े मेरे प्रभु, ओ मुझे फिर से तैयार कर खुदावन। मुझे फिर से तैयार कर मेरे प्रभु, मुझे फिर से तैयार कर खुदावन। जो बातें प्रभु मेरे अंदर आपको अच्छी नहीं कर लगती, आप उनको दूर करें। आप तोड़े मेरे अंदर से, ओ उसे खत्म करें मेरे प्रभु। ओ मेरी बहन प्रार्थना कर, मेरी बहन प्रार्थना कर, मेरे भाई प्रार्थना कर खुदा से। वो आपको तोड़ेगा और फिर से अच्छा बर्तन बनाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु मुझे एक अच्छा बर्तन बना मेरे प्रभु। मुझे अपने इस्तेमाल में आने वाला बर्तन बना खुदावन। ओ अपनी योजना के अनुसार बना मेरे प्रभु। मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो खुदा। आपकी मर्जी पूरी हो मेरे प्रभु, आपकी योजनाएं पूरी हो मेरे प्रभु। मैं कम होता जाऊं, आप मुझ में बढ़ते जाएं मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे परमेश्वर, मुझे आपकी जरूरत है मेरे प्रभु, मुझे आपकी जरूरत है मेरे प्रभु। ओ मेरे पति को बना मेरे प्रभु, मेरी पत्नी को तैयार कर मेरे प्रभु। ओ मेरे बच्चों के अंदर काम कर खुदा। ओ जो परमेश्वर मेरे बच्चों को तोड़ और उन्हें बना, मेरे पति को तोड़ और उसे तैयार कर,
मेरी पत्नी को तोड़ और उसे तैयार कर अपनी महिमा के लिए, तैयार कर अपने राज्य के लिए, तैयार कर, अच्छा बर्तन बनाओ मेरे प्रभु, एक अच्छा बर्तन बनाओ मेरे प्रभु। जीसस हालेलुया। जीसस जीसस हालेलुया। यस प्रभु, मेरे जीवन में काम करे मेरे प्रभु। आज मैं आपको कहता हूं प्रभु कि आप मुझे तोड़ें और बनाएं मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस। बोले प्रभु से, खुदावन मुझे हर दिन तोड़ और हर दिन तैयार कर, हर दिन बना मेरे प्रभु, हर दिन परमेश्वर, हर दिन मेरे प्रभु, हर दिन मेरे पिता मुझे तैयार कर। मैं हर दिन प्रभु कम होता जाऊं और प्रभु आप मुझ में बढ़ते जाएं, आप मुझ में बढ़ते जाएं। प्रे ब्रदर प्रे, आप बढ़ते जाएं मुझ में खुदावन। थैंक यू जीसस हालेलुया। थैंक यू प्रभु। आइए अपने हाथों को उठाएं, बोले धन्यवाद प्रभु, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूं। आप आशीष दें, आप अनुग्रह करें, आप अपने हाथों में ले और प्रभु मुझे तैयार करें। ओ प्रभु, आपको मालूम है आपने मुझे कहां से तोड़ना है मेरे प्रभु। वो बातें प्रभु मेरे अंदर से टूटें और नष्ट हों खुदावन, और मुझे अपने प्रभु अपने लिए तैयार कर खुदावन, अपनी महिमा के लिए तैयार कर, अपने राज्य के लिए तैयार कर, अपने महान कामों के लिए तैयार कर। ओ प्रभु तैयार कर खुदावन। मैं कहता हूं कि मुझे तैयार कर, अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूं। थैंक यू जीसस। थैंक यू प्रभु। मैं इस प्रार्थना को, बोले मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमेन आमेन आमेन। सब मिलके बोले हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की हालेलुया हालेलुया। प्रभु मेरे, जब मैं वचन को सुनूं, मेरे जीवन में एक अद्भुत कार्य हो यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन हालेलुया। आइए हम सब बैठ जाएंगे प्रभु की पाक और पवित्र हजूरी में। खुदावन यीशु आप सभी को बहुत आशीष, बहुत बरकत दे। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं जैसे आज आपने प्रार्थना की है अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, कि खुदा आपको तोड़े, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ करेगा ऐसा। हालेलुया आमेन। बोले आमेन हालेलुया हालेलुया। जब वो आपको तोड़े तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, थोड़ा दुख लगेगा, थोड़ा दुख लगेगा। हालेलुया। इससे परमेश्वर को कोई कंप्लेंट मत करना। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के बाद से, आज के इस समय के बाद से खुदा आपको तोड़ने वाला है, आपको तोड़ने वाला है। आमेन। हाँ, तो आप अभी आप अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। और खुदा आपको एक अच्छा शेप देने वाला है, अच्छा बर्तन बनाने वाला है। आमेन। जोर से बोले हालेलुया। आइए हम जोर से ताली बजाएंगे और प्रभु का वचन को सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंदा धन्यवाद कर दे एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह ने हमें शाम दी है, और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि खुदावंद हम सबों को अपनी उपस्थिति में लेकर आए हैं, और प्रभु की प्रेजेंस में आने के लिए हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के नाम की। आज की शाम एक बहुत ही स्पेशल शाम है, बहुत ही खास शाम है, और कई लोगों को शायद आज की शाम की इम्पोर्टेंस नहीं पता, क्योंकि कुछ लोग सोचते होंगे कि शायद आज
एक रेगुलर थर्सडे है, या एक जो हम सामान्य तौर से हर वीरवार को प्रभु के घर में आते हैं, हम वैसे आए हैं। लेकिन आज का जो वचन है वो हमारे लिए एक शिक्षा है। एक परमेश्वर हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, समझ होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के वचन की समझ नहीं होगी, तो हम खुदा के साथ सही नहीं चल सकते। हालेलुया। तो इसलिए सब लोग बड़े ध्यान से आज के वचन को सुनिए। मैं फिर से कह रही हूँ कि आज का वचन एक शिक्षा है, प्रचार नहीं है। हालेलुया। शिक्षा और प्रचार में बहुत फर्क होता है। शिक्षा हमें सिखाती है। आज हमें परमेश्वर का वचन सिखाएगा कि आज के दिन की क्या इम्पोर्टेंस है, और कलीसिया को ये बहुत ज़रूरी समझना है कि आज का जो वीरवार है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। आप मुझे बताएं, रविवार को क्या किया गया था यहाँ पर? बताओ, पीछे से बताओ, रविवार को यहाँ पर क्या मनाया गया था? बताओ, और बताओ, क्या बोलते हैं उस संडे को? बताओ, आप ब्रदर्स बोलो, आप लोग भी यहाँ पर थे। क्या था वो संडे? उसका अर्थ पता है किसी को? कोई एक लाइन में उसका अर्थ बताएगा? म्यूजिक नहीं चाहिए आज। बताओ, अर्थ पता है उसका? हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या अर्थ है? आपको पता ही नहीं है? जैतून जो आपने खजूरी आप बोल रहे हो, पाम संडे, उसका अर्थ क्या है? बताओ, आगे से बताओ, वॉलंटियर्स बताओ, क्या था इसका अर्थ? क्या है, मीनिंग क्या है इसका? यरूशलेम में गए, इतना सिखाने के बाद अभी भी यरूशलेम में गए, इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ था कि लोगों ने यीशु मसीह का बहुत ज़्यादा आदर किया और यीशु मसीह को एक शहर में बड़े आदर के साथ, जय जयकार के नारों के साथ उतारा। इसको बोलते हैं विजयी प्रवेश। हालेलुया। आपको वचन लिखना चाहिए, वचन का ज्ञान रखना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है मेरी प्रजा बिना ज्ञान के नाश हो रही है। आज भी ऐसा ही हो रहा है। जिस कलीसिया में लोगों को परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, वो लोग नाश हो रहे हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखना है, परमेश्वर के वचन की समझ रखनी है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आज थर्सडे और हम कल जानते हैं गुड फ्राइडे है, आज की रात बड़ी खास रात है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, यह एक शिक्षा है। जब हम मसीह लोगों के लिए क्रिसमस से ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये डेज हैं, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, सुनिए ध्यान से, जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा परमेश्वर के वचन में क्या हो रहा है। उधर ध्यान इधर दीजिए प्लीज। परमेश्वर के वचन में क्रिसमस के बारे में इतनी बात नहीं जितनी यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बात हुई है। हालेलुया। पता है इतना आपको? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों चैप्टर्स जो हैं ये यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बात करते हैं। और यीशु मसीह की जो दिन है कल गुड फ्राइडे का, ये जो सफर है, ये जो क्रूज की यात्रा है, ये यात्रा एक्चुअली में सोमवार से स्टार्ट हुई थी, संडे से स्टार्ट हुई थी। हालेलुया। मैं सिर्फ आज तक प्रचार करूंगी, वीरवार तक। कल का जो प्रीचिंग होगा क्रूज के ऊपर वो कल ही सुनाया जाएगा। सिर्फ आज की रात तक क्या हुआ था, आज की रात तक क्या यीशु मसीह के साथ हुआ था, ये आपको आज की रात बताना बहुत जरूरी है। मैं आपको कल का नहीं बताऊंगी, कल का कल बताया जाएगा, लेकिन आज की रात तक, वीरवार की रात तक जीसस के साथ हुआ क्या। आज लोग जीसस को बहुत लाइटली लेते हैं, पर मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, जिसको उसके सफर, उसकी क्रूज की कथा पता लग गई कि उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैं कहना चाहती हूँ वो इंसान अपने दुखों में, अपनी परेशानियों में खुदावन से और भी गहराई से लिपटा रहेगा। हालेलुया। तो संडे को हमने मनाया
पाम संडे, जिसको बोलते हैं खजूरी, पंजाबी में खजूरी है, जैतून का संडे बोला जाता है। तो ये है जो हम संडे को मनाया। इसका अर्थ है कि इस दिन क्या हुआ, यीशु मसीह को गधे के बच्चे के ऊपर बिठाया गया। मैं छोटा छोटा ब्रीफ दूंगी और मैं कोशिश करूंगी मैं टाइम पे ओवर करा। ध्यान से सीखना है, ठीक है, ध्यान लगा के, इवन वॉलंटियर्स भी ध्यान से सीखना, क्योंकि ये बहुत शिक्षा दोबारा नहीं मिलेगी। आप या फिर इसको यूट्यूब पर सुनोगे। जितने लोग आए हैं आप धन्य हैं, ब्लेस्ड हैं। इसके बाद इस वीडियो को जरूर आज की शेयर करना, ये बहुत लोगों के लिए एक आशीष का वसीला बन जाएगी। हालेलुया। सुनिए ध्यान से क्या हुआ। संडे में हमने मनाया जैतून का एतवार, खजूरी रविवार, पाम संडे, जिसमें यीशु मसीह एक गधे के बच्चे के ऊपर बैठे। पता है ना, गधे के बच्चे के ऊपर बैठे। और बाइबल बताती है यीशु मसीह कौन से शहर की तरफ जा रहे थे? यरूशलेम। और ध्यान से सुनना प्लीज। तो यरूशलेम जब जा रहे थे तो लोगों ने कैसे स्वागत किया यीशु मसीह का? बताओ कैसे स्वागत किया था? खुशी के साथ। कैसे स्वागत किया था? बहुत खुशी के साथ। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ो तो वहां पर लिखा है लोगों के पास जो कुछ भी था लोगों ने सब यीशु मसीह के स्वागत के लिए लगा दिया। लोगों ने यरूशलेम में, आपको पता है जैतून के पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं, तो लोग अपने शहर में जाकर जैतून के पत्ते, टहनियां उखाड़ के ले आए और यीशु मसीह के लिए होसन्ना होसन्ना के नारे लगाते रहे। और फिर जिन लोगों को पत्ते नहीं मिले, जिन पर लोगों को टहनियां नहीं मिली, उन्होंने क्या किया? उन्होंने यीशु मसीह के आगे अपने कपड़े उतार दिए। हालेलुया। ये क्या था? ये था कि ये लोग यीशु मसीह का बहुत स्वागत कर रहे थे। पर आपने बाइबल में एक जगह पर पढ़ा है, किन लोगों ने पढ़ा है कि यीशु मसीह ने उस शहर की तरफ देखकर दुख जताया था? पढ़ा है यरूशलेम की ओर यीशु मसीह ने जब देखा तो यीशु मसीह ने यरूशलेम की ओर देखकर यीशु मसीह रोए थे, यीशु मसीह अपसेट हो गए थे। पता है क्यों हुआ ऐसा? कौन है? वॉलंटियर्स को रोकना पड़ेगा, ठीक है? बहुत स्पेशल टाइम विद जीसस है। ध्यान से, मेरी तक आवाज आ गई है, ध्यान से सुने वचन को। सुनिए, जब यीशु मसीह बात करता है हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली जीसस को सुनना है। सुनिए आगे क्या हुआ। इतना समझ लगा? इसके बाद क्या हुआ? ध्यान से सुनना। इसके बाद जब यीशु मसीह को क्रूस चढ़ाया गया था, तो आपको पता है किन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस चढ़ाया था? इन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने यीशु मसीह के लिए डालियां उठा के यीशु मसीह की तारीफ की थी, जिन लोगों ने यीशु मसीह की महिमा की थी, इन्हीं लोगों ने आने वाले समय में ये नारा लगाया था, इसे सलीब दो, उसका प्रचार कल किया जाएगा। अब आगे बढ़े। संडे को पाम संडे मनाया गया। उसके बाद मंडे को क्या हुआ? मंडे को, सोमवार के दिन यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था। यीशु मसीह ने जब भूख लगी, यीशु मसीह ने एक अंजीर का पेड़ देखा, यीशु मसीह ने देखा उसमें कोई फल नहीं था, तो यीशु मसीह ने क्या बोला उसको? आज के बाद तुझ में फल ना लगे। ट्यूसडे को क्या हुआ? मंगलवार को यीशु मसीह एक मंदिर में गए जहां पर लोगों ने उस मंदिर को व्यापार का घर बनाया था, और यीशु मसीह ने अपने मंदिर को साफ किया था, जहां पर यीशु मसीह ने कहा तुम मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तुमने इसको क्या बना रखा है? डाकुओं की खो बनाया हुआ है, तुमने इसको बिजनेस का घर बनाया हुआ है। तो ट्यूसडे को यीशु मसीह ने मंदिर को साफ किया था। बुधवार को क्या हुआ? एक्चुअली बुधवार को तैयारी चल रही थी। देयर वाज द प्लानिंग। बुधवार को एक प्लानिंग चल रही थी जिसमें यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। इस टाइम में जो कल का दिन निकले, जो कल का दिन निकला है, उस दिन में अकॉर्डिंग टू बाइबल एक तैयारी चल रही थी, जिस तैयारी को चला रहा था यहूदा इस्करियोती। वो याजकों से, प्रधान याजकों से मिला और यीशु बोलता है कि इस जगह पर यीशु मसीह हमें मिलेगा। तो उसने बोला मुझे 30 चांदी के सिक्के दे दो, इसके बदले में तुम्हें यीशु का पता बता दूंगा। और आज आ गई अगली रात, वीरवार की रात। अब हमें सुनना है कि आज की रात यीशु के साथ क्या, तुम्हें क्या तानू की लगता है? आपको क्या लगता है? यीशु मसीह आराम से किसी सिंहासन से उठे और यीशु मसीह को क्रूस दे दी गई?
क्या यीशु मसीह आराम से किसी बिस्तरे से उठे और यीशु मसीह को क्रूस दे देगी? नहीं। आज कलीसिया को अपने खुदा के बारे में, अपने परमेश्वर के उस दुख के बारे में समझना है। आज की रात जब आप लोग सो रहे होंगे, आज की रात जब अपने बिस्तरों पर खर्राटे मार रहे होंगे, याद रखना उस समय मेरा और आपका प्रभु अदालतों में घूम रहा था। यह ताली बजाने वाली बात नहीं है। नहीं, लिसन, सुनो प्लीज, मेरे को कोई ताली नहीं चाहिए, मत बजाओ तालियां, सुनो, समझो क्या समझा है। जिस समय में हम सो रहे होंगे उस समय में हमारा यीशु अदालतों में गुजरा था। यीशु मसीह के पकड़वाए जाने से पहले, पढ़ के देखो, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने पहले प्रभु भोज किया। यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बैठे और अपने चेलों में प्रभु भोज किया, और उसी प्रभु भोज में यीशु मसीह को पकड़ाने वाला भी बैठा था। आपको पता है, क्या आपको पता है यीशु मसीह को यह बात पता थी कि यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़वाएगा? पता है? पता था यीशु मसीह को? बिल्कुल पता था, क्योंकि बाइबल बताती है जब वो घड़ी आ पहुंची, वो टाइम आ पहुंचा, तो यीशु मसीह अपने प्रेरितों के साथ बैठे। कितने प्रेरित थे उसके? कितने चेले थे उसके? 12 चेले। वो अपने 12 के 12 चेलों के साथ बैठा। यीशु मसीह ने एक रोटी उठाई और धन्यवाद करके तोड़ी और बोला, ये मेरी देह होगी। मरने से पहले यीशु मसीह बता रहा है कि जिस तरह मैं ये रोटी तोड़कर आज तुम्हें दे रहा हूं, इस तरह कल के दिन मैं तोड़ा जाऊंगा। और फिर यीशु मसीह ने उसके बाद एक प्याला लिया और बोला, ये मेरा लहू है। वो चेलों को बता रहे थे कि कल, आज जैसे मैं तुम्हें ये लहू पिला रहा हूं, कल मेरा लहू तुम क्रूस के ऊपर टपकता हुआ, कोड़ों के साथ जब मुझे बेंधा जाएगा तो ये क्रूस का दरिया मेरे अंदर से बहता हुआ देखोगे। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा, जिसने मुझे पकड़वाना है वो हमारे बीच में ही बैठा है। सबसे पहली बात आज जो हम सीखेंगे आज के इस दिन में, जब हमें पता हो ना कि इस बंदे ने मुझे इतना खतरनाक धोखा दिया है, जब मुझे पता हो कि इस जन ने मेरे लिए इतनी बड़ी प्लानिंग बनाई हो, हम कभी उसके साथ बैठना, क्या बात करना पसंद नहीं करते। हम मसीह लोग हैं, हमारे अंदर क्या होता है, हम लोग इतनी नफरत उसके लिए पाल लेते हैं, हम अपनी प्रार्थनाओं में भी उसके लिए उलट प्रार्थना करते हैं। पता है कैसे करते हैं प्रार्थना? हम मुंह से तो कहते हैं कि परमेश्वर इसको माफ करे, लेकिन अंदर से कहते हैं परमेश्वर तुझे बख्शेगा नहीं। आज एक बात याद रखना, आज खुदावंद यीशु से एक बात बहुत सीखने वाली है कि यीशु मसीह को जिसने पकड़वाना था, यीशु मसीह ने सबसे पहले उसके साथ भोजन किया। इसका अर्थ समझते हैं? भोजन का अर्थ क्या होता है? किसी को पता है भोजन का अर्थ क्या है? जब हम किसी के साथ बैठकर भोजन करते हैं, इसका मतलब ये बताया जाता है हम उससे प्रेम करते हैं। हम जिसके साथ खाना खाते हैं, हम जिसके साथ रोटी खाते हैं, देखिए जब किसी की लड़ाई हुई होती है, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, तो वो इकट्ठे खाना भी नहीं खाते, पर जब प्रेम होता है वो एक थाली में खाते हैं। लेकिन यीशु मसीह अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले लोगों के बीच में ये उदाहरण दे रहा था कि देखो मेरा पकड़वाने वाला मेरे सामने बैठा है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी शिक्षा देकर जा रहा हूं कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना। हालेलुया। ये बहुत मुश्किल है। आज आपने प्रार्थनाएं की हैं पास्टर जी के साथ मिलकर, प्रभु मुझे बदल, मुझे बदल, मुझे बदल। सब कुछ प्रभु थोड़े ना बदलेगा, प्रभु कर चुका है सलीब पर। वो मैं बताऊंगी कल, जब उसने कहा पूरा हो चुका। लेकिन अब बात हमारे ऊपर है, हम कैसा रिएक्शन करते हैं, हम कैसा रिएक्ट करते हैं किसी चीज के ऊपर। और यीशु मसीह ने सबसे पहला उदाहरण, अभी देखो पकड़वाए जाने से पहले, अभी वो पकड़वाए नहीं गए, पकड़वाए जाने से पहले यीशु मसीह ने अपने दुश्मन के साथ भोजन किया। हालेलुया। तकरीबन वीरवार की शाम को जब यीशु मसीह पकड़वाए गए, तो यीशु मसीह को 4 अदालतों में से होकर गुजरना पड़ा, 4 अदालतों में से। और बताया जाता है, ये हिस्ट्री है,
कि जो अदालतों का रास्ता था वो तकरीबन 30 किलोमीटर का रास्ता था। अब 30 किलोमीटर का आइडिया लगाइए, एक अदालत, दूसरी अदालत, उससे तीसरी अदालत, चौथी अदालत। सारी रात जब हम सोए होते हैं उस समय हमारा यीशु मसीह घड़ीस घड़ीस कर अदालतों में लेकर जाया जा रहा था। और बताया जाता है कि यीशु मसीह के पैर इतने सूज गए थे कि उनसे चला नहीं जाता था। एक बार भी कहीं भी उसको बैठने नहीं दिया गया, बैठने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि ऐसी कोई अदालत बनी नहीं थी जो सुबह में परमेश्वर का मुकदमा करते। इसलिए यीशु मसीह के लिए रात को अदालत खोली गई ताकि रात को यीशु मसीह का मुकदमा चले। और 30 किलोमीटर आप आइडिया लगा के देखें कि यीशु मसीह को कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर घसीटा जाता था। हालेलुया। और हर एक अदालत में यीशु मसीह का मजाक बनाया गया। दूसरी बात यहां पर परमेश्वर पता क्या बता रहा है? परमेश्वर बता रहा है उसने कितना पेशेंस रखा। कि कहते पेशेंस नु धीरज, उसने कितना धीरज रखा। अब अगर आप बाइबल को पढ़ने वाले होंगे तो आप देखोगे यीशु मसीह हर एक अदालत में चुप रहा। क्या रहा? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो चुप रहते ही नहीं। हमें थोड़ा सा किसी ने घाव पहुंचाया नहीं तो हम अगला पिछला ऊपर नीचे सब कुछ भूल जाते हैं और हम खुद ही जज बनते हैं। दूसरी बात परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहते हैं कि अपने पकड़वाए जाने से पहले जिस रात उसको यहां से वहां, वो बोल सकता था मेरा कसूर क्या है, क्यों मुझसे ऐसे कर रहे हो? मैंने तुम लोगों में से लंगड़ों को चलाया, मैंने तुम्हारे बीच में लाजर को जिंदा किया, मैंने तुम्हारे बीच में एक विधवा माँ के इकलौते पुत्र को उसको मोड़ा, मैंने किया क्या गलत, क्यों मुझे सजा दे रहे हो? पर बाइबल पढ़ के देखो, बाइबल साफ कहती है यीशु मसीह चुप रहे। दूसरी बात जो आज कलीसिया को हमें सीखने की जरूरत है, हमें चुप रहना है। जब लोग आपको सताएं, जब सताव आपके ऊपर उठे, जब लोग आपकी विरोधता में बोले, मुझे पता ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हम क्यों ना आज से एक फैसला लें कि मैं चुप रहूंगी, क्योंकि हमारा यीशु चुप रहा। हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आज की मीटिंग को वाइंड अप करेंगे और इसका अगला पोर्शन कल सिखाया जाएगा। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह, आप जानते हैं एक बात, जब मैं आपको कल क्रूस की कथा मैं आज बिल्कुल नहीं छूंगी, जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको तो अभी इतना ही पता है ना। क्या पता है क्रूस के बारे में? क्या पता है आपको क्रूस के बारे में? बस इतना पता है गुड फ्राइडे वाले दिन जीसस क्राइस्ट क्रूस पर लटके, दैट्स इट। इससे आगे पता है कुछ? बताओ मुझे, पता है? इसके आगे कुछ नहीं पता। जो जितने लोग चाहते हो तो कल की सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की सभा में आइएगा। बाइबल साफ कहती है धन्य है वे जो उसके दुख में शामिल हुए। हालेलुया। तो यहां पर एक वचन पढ़ते हैं, मेरे साथ खोलिए लूका की किताब, उसका 22 अध्याय, उसकी 39 में लिखा है। 22 अध्याय लूका 22 उसकी 39 में लिखा है, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तीसरी बात जो परमेश्वर ने हमें सिखाई है अपने पकड़वाए जाने से पहले, कि प्रार्थना करनी मत छोड़ना। मुझे सच बताना, कितने लोग इस चर्च में हैं जो इतना टाइम खुदा को देते हैं कि टाइम देने के बाद उनका अंदर पवित्र आत्मा, उनका अंदर मन बोलता है आज तूने खुदा के साथ समय बिताया। मैं 10-15 मिनट को कुछ नहीं गिनती, वो सिर्फ एक टाइम पास है। जब आपके अंदर से एक आवाज आए आज खुदा के साथ समय बिता के उठा, मुझे बताओ इसे कौन है? कौन है ऐसे यहाँ पे? जब आप प्रभु के साथ समय बिता, मैं 1 घंटे की बात भी नहीं कर रही हूं, मैं 1.5 घंटे, मैं एक समय की बात कर रही हूं। जब आप एक प्रभु के साथ समय बिताते हैं और आपको पता चलता है कि आज मैंने खुदा के साथ समय बिताया है। और मैं आपको बताऊं, खुदा के साथ जब आप समय बिताते हैं ना,
तो फ्रूट निकलते हैं। क्या निकलते बोलो? फ्रूट। और जब हम खुदा के साथ समय नहीं बताते, हमें कोई फ्रूट नहीं लगता। तो यहां पर तीसरी बात जो खुदा ने बताई, यीशु मसीह ने अपने पकड़वाए जाने से पहले बताया, कभी प्रार्थना करनी मत छोड़ना। यहां लिखा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह को सब पता था कि मैं गतसमने के उस बाग में पहुंच चुका हूं, इसके बाद अगला स्टेप मेरा पकड़ा जाऊंगा। पर यीशु मसीह क्या सिखा रहे अपने चेलों को? वो कह रहे हैं प्रार्थना करना ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अब आगे सुनो, लिखा है, वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना थी प्रभु की? हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह ने प्रार्थना जो की वो ये थी, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस प्याले को मुझसे दूर कर ले, तो भी मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। अब आप सोचते होंगे वो परमेश्वर था, उसको प्रार्थना की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यीशु मसीह कभी वो नहीं सिखाते थे जो वो खुद ना करते हों। आज हम दूसरों को वो सिखाते हैं जो हम खुद नहीं करते। यीशु मसीह कभी दूसरों को वो नहीं करने के लिए कहते थे जो खुदावंद ने खुद ना किया हो। यहां पर यीशु मसीह एक चीज सिखा रहे थे कि जब भी तुम प्रार्थना में जाओ, कभी खुदा से मत ये कहना मेरी इच्छा को पूरी कर, कभी खुदा से मत कहना मेरे अकॉर्डिंग चल, कभी पिता से मत कहना मेरी मर्जी पूरी कर, कभी मत कहना परमेश्वर जो मैं चाहता हूं वो कर। हमेशा कहना परमेश्वर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। ये सिखा रहा है वो। अपने जाने से पहले क्या शिक्षा देकर गया अपने लोगों को कि प्रार्थना कैसे करनी है। पर आज हमारी प्रार्थना कैसी है? हमारी प्रार्थना में एक लिस्ट बनी होती है। जब हम प्रार्थना में बैठते, प्रभु इसके साथ वैसा करी, बच्चों के साथ ऐसा करी, मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे ऐसे करी, मुझे वैसे करी। लेकिन कभी ये कहा है खुदा आज सारी मेरी ख्वाहिशों को एक साइड रख दे, पर आज वो करी जो तू चाहता है। यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को, उसको पता था कटोरा बहुत पेनफुल है। कल बताएंगे उस कटोरे के बारे में। कल मैं बताऊंगी जिस कटोरे के बारे में परमेश्वर ने कहा था मुझसे दूर हो जाए, एक्चुअली में उस कटोरे में था क्या। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहीं और प्रार्थना की। जब वो पिलातुस के सामने गया, हेरोदेस के सामने गया, तो यीशु मसीह ने वहां प्रार्थना की थी? बताओ, कहीं नहीं की यीशु मसीह ने। अब यहां पर यीशु मसीह ने प्रार्थना करके क्या कहा? अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर हटा लिया जाए, तो भी मेरी नहीं परंतु प्रभु पिता तेरी मर्जी पूरी हो। तो वहां लिखा, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। यहां पर लिखा है जब परमेश्वर ने प्रार्थना की तो उसको एक स्वर्गदूत मिला जिसने परमेश्वर को सामर्थ्य दी उस क्रूस पर जाने के लिए। क्रूस को सहने के लिए नहीं, क्रूस पर जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर ऐसा एंजल हमारी लाइफ में देगा, ऐसा दूत हमारी लाइफ में देगा जो हमारी मदद करेगा कि हम अपने दुखों में भी परमेश्वर में मजबूती से बने रहें। तो आज की रात आपको पता चल चुका होगा कि क्या रात है। आज की इवनिंग बड़ी दुख वाली इवनिंग थी। आज की रात से ही परमेश्वर का दुख स्टार्ट हो गया था, क्योंकि आज की रात मेरा और आपका प्रभु पकड़वा लिया गया था। कल की सुबह 6 बजे से परमेश्वर की पहली सजा जो दी गई थी वो शुरू हो गई थी। सुबह 6 बजे उसका टाइम था जहां पर यीशु मसीह को कोड़े लगे थे। वो हम कल यहां से अगला प्रचार कल की सभा में होगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के नाम की। तो आपने सीखा, क्या बातें सिखाई गई हैं? यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ने से पहले क्या क्या बातें सिखाई? मुझे बता सकता है कोई? 3 बातें बताई हैं मैंने। कौन सी बातें हैं वो बताओ? मैंने 3 चीजें सिखाई हैं। हाँ जी सिस्टर जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल।
जी, हमें प्रार्थना में, वेरी गुड, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद है कि एक बहन बहुत ध्यान से सुन रही थी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बाकियों का मुझे पता नहीं, पर याद रखिए न्याय करने वाला जल्द आने वाला है। अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उसकी बातों को अपने दिल में रखेंगे, हालेलुया। तो आज की रात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे पकड़वाए गए थे। आज की रात यीशु मसीह को पकड़वाने वाला यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़वा गया था, और कल की सुबह में हम यहाँ पर मिलेंगे, उस कटोरे के बारे में बात करेंगे जिस कटोरे के लिए यीशु ने प्रार्थना की, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर इस शिक्षा के द्वारा आपकी मदद करे कि जो खुदा ने हमें सिखाया हम उसके अनुसार चल सके।